Hey there, this is Mansi Rawat, and today we're gonna learn the section 115JB, that is minimum alternate tax. Okay, so we are already done with we already know this topic and we know what actually happening in this topic. So basically, what we're gonna learn in this, the points, the book profit, for the computation of the book profit, the points which we need to add and which we need to less, the points we need to remember, है ना. यही पॉइंट्स हमें याद रखने हैं, इसके अलावा हमें कोई पॉइंट्स याद नहीं रखने हैं. तो इसीलिए मेरे पास एक टेक्निक है जिससे यू विल लर्न ऑल द add and less topics are given, add and less points they have given to you, and I'll ensure you after this you will be very sure with this topic, very confident with this topic. So let's go, है ना. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जो रेट होती है इसमें, वी नो व्हाट इज़ द रेट गिवन टू अस. यस, सो रेट गिवन इज़ 15%. बुक प्रॉफिट का 15% रेट इज़ गिवन टू यू, and the tax payable as per the normal provision that we know how to calculate this. In PGBP we have learned about this. Okay, so 15% of the book profit plus surcharge if any and cess. Okay, so हम लोग आ जाते हैं बुक प्रॉफिट पे. सबसे पहले बुक प्रॉफिट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड द एडेड पॉइंट विल बी 14 पॉइंट्स दे हैव गिवन टू अस. 14 के बाहर हमें कुछ याद नहीं रखना है ना, 14 ही पॉइंट्स हमें याद रखने हैं, और 11 पॉइंट लेस में है वही हमें याद रखना है. सो आई हैव निमोनिक फॉर दिस, दैट इज़ दिल दैट पुनेरी. पुनेरी मीन्स पुणे के जो लोग होते हैं उन लोगों को कहते हैं पुनेरी. द महाराष्ट्रियन पीपल विल अंडरस्टैंड दिस, but dill that puneri, dill that puneri, dill that puneri. So from dill I should start with D. D is defer tax. D is defer tax. You will be able to see over here. Defer tax वाला पॉइंट है. या तो मैं आपको स्टार्टिंग से जो पॉइंट लिखे हैं वो करवा दूँ, या फिर ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ से करते हैं. दिल डैट पुनेरी, तो दिल डैट ये है ऐड के. ओके, ये ऐड वाले पॉइंट है. फिर 115JB जब भी आप जो भी फॉर्मेट बनाओगे, सो दिल डैट पुनेरी यू हैव टू रिमेंबर दिस. और कहीं पे भी ये दिमाग में लिख लेना कि कौन कौन से पॉइंट, दिल डैट पुनेरी के अलावा कोई भी पॉइंट नहीं आने वाले. अब हम लोग इस पर आ जाते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं इसमें. दिल डैट इज़ डी. डी फॉर डेफर टैक्स. डी फॉर डेफर टैक्स. डेफर टैक्स विच वी नीड टू ऐड, है ना. डेफर टैक्स ऐड करना है हमें. उसके बाद आ जाता है आई फॉर इनकम टैक्स पेड. इनकम टैक्स पेड एंड प्रोविजंस, जो भी इसकी प्रोविजन होती है. इनकम टैक्स पेड प्रोविजंस इंक्लूड्स इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स DDT जो भी आ जाता है इसमें, SC एंड सेस, है ना. इसमें कुछ इनकम टैक्स DDT और जो भी अपना क्या था ये, मैं ऐसे क्यों पढ़ रही हूँ इसको, सेस जो भी रहता है और सरचार्ज जो रहता है वो है ये. इनकम टैक्स पेड प्रोविजन. इनकम टैक्स पेड प्रोविजंस इंक्लूड्स इंटरेस्ट, इनकम टैक्स, DDT, SC, सेस. ठीक है, तो हमें आई याद रखना है. यहाँ पे बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें यू विल गॉट टू नो कि हम इसको ऐसा क्यों कर रहे हैं. अभी हमें लर्न करना है यहाँ पे. दिल डैट पुनेरी, सो डी डन. डी फॉर डेफर टैक्स, आई फॉर इनकम टैक्स, एल फॉर आ जाता है लॉस. लॉस प्रोविजन और you will able to see the loss of subsidiary. Loss provision for loss of subsidiary. Loss provision for loss of subsidiary, that is from L. So del is done. Del for D for defer tax, I for income tax paid provision, and L for loss provision for loss of subsidiary. Okay, now dad is from dividend paid and proposed. Dividend paid and proposed. Paid also, proposed also, we both need to add this in profit and loss as per P&L account. Okay, del dad puneri, del is done deferred tax, then income tax paid I, and L for loss provision for loss of subsidiary. Okay, now dividend paid proposed. Now dividend, D for dividend paid proposed. A for any amount transferred to any reserve. Any amount transferred to any reserve. Okay, now D for another D will be the total depreciation debited to the profit and loss. What we'll do over here, we debit the total depreciation what we debit to the profit and loss, and less may what we'll do, will subtract from this depreciation, the revaluation wala depreciation will subtract, and then we again deduct that particular point. But here we'll add total depreciation debit to profit and loss. Total depreciation debited to profit and loss. So
First is DIL, then DAD. That is dividend paid proposed. Dividend paid proposed. Dividend paid proposed, and by any amount transferred to any reserve, any amount transferred to any reserve, and now total depreciations debited to the P&L. Okay. So DIL and DAD is done. Now we have to come for Puneri. Puneri is for provision for diminishing in value of assets. Provision for diminishing in value of assets. Diminishing in value of assets. Provision. कोई भी provision है. Provision for diminishing the value of assets. If you are diminishing the value of assets, and we are making the provisions, we need to add this point. Now this is also a provision for you. This is also a provision for uncertain liability. So you have to remember जहाँ पे भी आपको बोलेंगे uncertain liabilities or contingent liabilities, so just remember uncertain liabilities or contingent liabilities, it is more or less the same thing. Uncertain, which we haven't ascertained yet, and contingent we know, we very well know the concept. Okay, so provision for the uncertain liabilities and contingent liabilities. Now P is for provision. This is also a provision, but keep for remembrance uncertain liabilities. I have given you the U word. So provision for diminishing in the value of assets. DD बहुत हो गया था वैसे भी. Provision for diminishing in the value of assets बहुत बार हमें रिवाइज करना तो हो जाएगा. फिर उसके बाद आ जाएगा uncertain liabilities and contingent liabilities के लिए जो provision बन जाता है. Then notional loss regarding business trust. Notional loss regarding business trust unit. Notional loss जो होता है हमारा वो जाएगा M. So गया पुणे. अब ना N से हो गया, उसके बाद E से आते हैं एक्सपेंसेस. देखो E में you will get the 4 points. E में you will get 4 expenses. 4 expenses regarding what? Regarding earning some specific income. Earning some specific income. एक्सपेंसेस हो रहे हैं टू अर्न सम स्पेसिफिक इनकम. अब वो स्पेसिफिक इनकम क्या है, ये वाले सेम पॉइंट्स हमें लेस में भी देखने मिलेंगे, तो मैंने इन्हें ई ही डिनोट किया है. इन लेस में भी आई हैव डिनोटेड दिस इन ई ही. ओके, सो एक्सपेंसेस फॉर अर्निंग इनकम फ्रॉम ये जो हमारे 10, 11, 12 होते हैं, जो 10 में कौन सा हो जाते, जो भी एग्जाम्प्ट इनकम होती है. 11, 12 में हम लोगों ने ट्रस्ट पढ़ा है, तो 11, 12 ट्रस्ट की इनकम को अर्न करने के लिए कोई भी एक्सपेंसेस हुए हैं, यू विल नीड टू ऐड दिस. देन एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू AOP. एक्सपेंसेस रिलेटेड टू AOP. एक्सपेंसेस रिलेटेड टू AOP. अब यहाँ पे हम कौन कौन से ऐड कर रहे हैं ना, ये जो 4 वाले हम ऐड करें उससे भी लर्न करने की मेरे पास टेक्निक है, तो कोई बात नहीं, पहले देख लेते हैं. 10, 11, 12 को हम अर्निंग कर रहे हैं, उसके बाद हम जो AOP है, AOP से जो भी हमें शेयर मिल रहा है उसे अगर हम करने के लिए कोई एक्सपेंस कर रहे हैं. उसके बाद रॉयल्टी अंडर सेक्शन 115 BBF जो पेटेंट वाला होता है, PGP में पढ़ा होगा हम लोगों ने. तो पेटेंट 75% अगर आपने एक्सपेंस इंडिया में किया है तो क्या कहते हैं, इसे ऐड करेंगे. ओके, तो एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू इनकम फॉर रॉयल्टी अंडर सेक्शन 115 BBF. ओके, उसके बाद आ जाता है फॉरेन कंपनी वाला जिसमें 15% से अगर ज़्यादा वाला टैक्स होता है, तो फिर हमें क्या करना होता है. 15% से ज़्यादा वाला टैक्स होता है तो हमें, तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन अगर लेस देन रहता है तो लेस देन 15% रहता है किसी भी इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी, FTS का, तो हम लोग इसे ऐड करते हैं. कैपिटल गेन, सिक्योरिटी, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी, FTS इफ़ द टैक्स ऑन, ठीक है ना. तो 15% वाला हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, बट 15% वाला नहीं ध्यान रखना है यहाँ पे. अगर 15% से कम होता है तो, 15% से कम होता है तो एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू इनकम ऑफ फॉरेन कंपनीज. तो यहाँ पे हम लोगों ने 4 टाइप के एक्सपेंसेस देख लिए. एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू 10, 11, 12 AOP एंड देन AOP एंड देन 115 BBF एंड फॉरेन कंपनीज़ का बहुत अच्छे से देख लेना, ये पॉइंट आ जाता है ना. उसके बाद ज़्यादातर डेप्रिसिएशन हम कर चुके हैं. उसके बाद एक पॉइंट बचा था ई से. ई के जो पॉइंट है पुनेरी, PUNER फॉर बैलेंस इन द रिवैल्यूएशन रिजर्व. बैलेंस इन द रिवैल्यूएशन रिजर्व ऑन रिटायरमेंट or disposal of any assets, on retirement and disposal of any assets if not credited to P&L account. If not credited to P&L account, you have to consider these short lines also, because सिर्फ ये देख के revaluation reserve आए डायरेक्ट डाल दो, नहीं. if not credited in P&L account, ये भी you have to consider, you have to focus on this. ओके, तो हम लोगों ने कौन से पॉइंट देखे, 14 पॉइंट्स हो चुके हैं, लेकिन ई से हमें याद रखना है. अब ई के जो पॉइंट थे, कौन कौन सी इनकम थी, ये याद रखने के लिए मैंने एक बनाया हुआ है. क्या बनाया हुआ है कि ट्रस्ट वाला जो था पॉइंट, सबसे पहले 11, 12 तो उसमें ट्रस्ट है बेसिकली, और 10 एग्जम्प्ट है. तो ट्रस्ट वाला, ट्रस्ट
AOP थोड़ा मतलब AOP इज यू कैन कंसिडर दिस ऐप नहीं आप। ट्रस्ट आप रॉयल्टी पे कर दो फॉरेन कंपनी को, ट्रस्ट आप रॉयल्टी पे कर दो फॉरेन कंपनीज को, ट्रस्ट आप रॉयल्टी पे कर दो फॉरेन कंपनीज को। ट्रस्ट को बोला है आप, ट्रस्ट आप एक काम करो रॉयल्टी पे कर दो फॉरेन कंपनीज को। तो ट्रस्ट वाला इनकम जो AOP वाला ये थोड़ा आप जैसे दिख रहा है ना, जो हम लिखते हैं हिंदी मतलब इंग्लिश में हिंदी लिखते हैं जो, हाँ तो क्या कहते हैं, ट्रस्ट आप रॉयल्टी पे कर दो फॉरेन कंपनीज को, ट्रस्ट आप रॉयल्टी पे कर दो फॉरेन कंपनीज को। तो ये हो गया ट्रस्ट आप रॉयल्टी फॉरेन कंपनी। तो ये वाली चीज़ें अगर आएगी मतलब इन लोगों से इनकम अर्न, कोई और दिख रहा है यहाँ पे, कुछ भी नहीं दिख रहा है, बस ट्रस्ट वाली इनकम, AOP वाली इनकम, रॉयल्टी और FC। हम लोग उसमें तो सारी इनकम को जाके जो भी क्रेडिट में इनकम होती थी PNL में, उसे हम इफ़ेक्ट देते थे किस में, जब हम नॉर्मल तरीके से निकालते थे। बट हियर वी आर गिविंग जस्ट इफेक्ट्स ऑफ ट्रस्ट, AOP, रॉयल्टी एंड FC। ओके तो बस फटाफट से हम लोग फिर से देख लेते हैं। डिल डैट पुनेरी, डिल डैट पुनेरी, D फॉर वॉट, D फॉर वॉट, डेफर टैक्स, I फॉर इनकम टैक्स पेड प्रोविजन इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स, DDT सरचार्ज एंड सेस। उसके बाद आ जाता है डिल, L फॉर लॉस प्रोविजंस फॉर लॉस ऑफ सब्सिडरी। I कहाँ है वो मैंने दिखाया नहीं है, यहीं पर है, I यहाँ पर है, कोई बात नहीं। तो I यहाँ पर डिल हो गया, डैट हो गया डिविडेंड पेड प्रपोज्ड। उसके बाद आ गया एनी अमाउंट ट्रांसफर, ठीक है, एनी अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व। उसके बाद आ गया D फॉर जो हमारा टोटल एप्रिसिएशन है। उसके बाद P फॉर प्रोविजन फॉर डिमिनिशिंग इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। उसके बाद आ जाता है यूज अनसर्टेन लाइबिलिटीज, कंटीजेंट लाइबिलिटीज, नोशनल लॉस रिगार्डिंग बिजनेस ट्रस्ट, दैट फॉर N। उसके बाद आ जाता है ई से हम लोगों ने देख ली थी, ट्रस्ट आप रॉयल्टी फॉरेन कंपनी को दे दो, ठीक है। उसके बाद ये चारों कवर हो गए। उसके बाद री फॉर द रीवैल्यूएशन रिजर्व्स, और आई कुछ नहीं है तो आप उसमें स्मॉल से याद रखो बस पुनेरी के लिए, ठीक है। तो दिल डैट पुनेर मेनली है, आई से कुछ नहीं है यहाँ पर, बट आप साइड में लिख दो, कोई टेंशन नहीं है, आपको ध्यान में रहेगा। 14 हो जाएंगे, उसके बाद कुछ नहीं है। सो वी आर डन विथ व्हाट वी नीड टू ऐड। नाउ वी आर सीइंग व्हाट वी नीड टू लेस। इसके लिए एक है पैड बर्न हो गया, ठीक है। तो चलो ठीक है, हम देखते हैं इसमें P फॉर प्रॉफिट। यहाँ पे भी ना सेम पॉइंट है, जैसे ऊपर क्या था लॉस, L फॉर लॉस, नाउ हियर प्रॉफिट ऑफ द सिक इंडस्ट्रियल कंपनी। सो बेसिकली यहाँ पे वही चीज़ है, जहाँ पे आपने लॉस लिया था इसका प्रॉफिट, आपने एक्सपेंस लिया था इसका इनकम, तो हमें वही करना है। लेकिन यहाँ पे भी सेम एक्रोनिम मतलब वर्ड्स आपको सेम मिल जाएंगे, बट ओवर देयर दैट वाज लॉस एंड नाउ हियर प्रॉफिट। द प्रॉफिट ऑफ सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज, दैट इज P। A फॉर अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम एनी रिजर्व, सेम हमने देखा था, वहाँ पर भी A ही हमने वर्ड दिखा था। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है डेफर टैक्स, ओवर देयर वी हैव ऑल्सो मेंशन D फॉर द डेफर, वी हैव डिनोटेड D फॉर डेफर टैक्स। नाउ हियर ऑल्सो वी आर डिनोटिंग D फॉर डेफर टैक्स, A फॉर अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम एनी रिजर्व एंड P फॉर प्रॉफिट ऑफ सिक इंडस्ट्रियल कंपनी। यू जस्ट नीड टू कंसिडर दिस पैड क्या है, प्रॉफिट ऑफ सिक इंडस्ट्रियल कंपनी, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम एनी रिजर्व्स एंड D फॉर डेफर्ड टैक्स। एंड नाउ वी आर कंसिडरिंग बर्न के लिए बर्न के लिए आ जाते हैं बॉट फॉरवर्ड लॉसेस एंड अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। इसमें भी हम ले लेते हैं विच एवर इज लोअर इन ऑल अदर कंडीशन एक्सेप्ट सम फ्यू कंडीशंस विच विल गोना सी। बट जो भी कंडीशन होगी उसमें हम क्या लेंगे, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस एज पर बुक्स एंड अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन विच एवर इज लोअर। यूजुअली what will consider both these things in normal provision, but here we are considering whichever is lower in all other cases. Exceptional are 2 cases. So yes, BC हो गया brought forward losses, then U for unabsorbed depreciation as per the books, whichever is lower. अब हम exceptional में देख लेते हैं, बस वो जिसमें IBC लग जाता है 2016 का, मतलब 2016 का जो IBC लग जाता है, जिसमें CIRP प्रोसेस चालू हो जाती है। You have learned this in law, है ना। और उसके बाद 241 241 ये भी लॉ वाला ही है, जो ऑपरेशन मिस मैनेजमेंट में आई थिंक 241 और 242। तो ये वाले जो लग जाते हैं, ये वाले सेक्शन लग गए, तो यू हैव टू
टू ऐड बोथ ऑफ दिस, बट बर्न के लिए याद रखना है बी यू यहाँ पे दोनों चीज़ कवर हो गई है. फॉर आर विल गो फॉर अगेन वी आर कंसिडरिंग आर फॉर रिवैल्यूएशन रिजर्व. आर फॉर रिवैल्यूएशन रिजर्व ट्रांसफर फ्रॉम. यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो हम मिस कर जाते हैं, टू द एक्सटेंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स. टू द एक्सटेंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, टू द एक्सटेंट ऑफ, इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान रखना. ट्रांसफर ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व, आर फॉर ट्रांसफर ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व. आर फॉर ट्रांसफर ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व. डेप्रिसिएशन एज पर द बुक बी यू आर. उसके बाद पूरी देखेंगे हम, अभी आप डी से देख लो. डेप्रिसिएशन एज पर द बुक एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ द असेट्स. एक्सेप्ट रिवैल्यूएशन मैंने आपको बताया था, वहाँ पे हम डेप्रिसिएशन पूरा ऐड कर देते हैं. यहाँ पे रिवैल्यूएशन ऑफ द असेट्स पे जितना डेप्रिसिएशन लग रहा है यू हैव टू डिडक्ट दैट फ्रॉम द टोटल डेप्रिसिएशन. ओके, तो हो गया बी यू आर. उसके बाद डी भी हमने यहाँ पर देख लिया है. उसके बाद हम देखते हैं ई, है ना. यहाँ पे पी ए डी हो चुका है हमारा, बी यू आर हो चुका है, एन से वही नोशनल लॉस, नोशनल गेन. यहाँ पर आ जाएगा नोशनल गेन. नोशनल गेन रिगार्डिंग बिजनेस ट्रस्ट यूनिट. नोशनल गेन रिगार्डिंग बिजनेस ट्रस्ट यूनिट. ओके, तो डी भी हमारा हो चुका है. रिमेनिंग इज व्हाट ई. ई मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे भी हम लोगों ने एक्सपेंस के जो 4 पॉइंट थे कि ट्रस्ट आप रॉयल्टी फॉरेन कंपनी को दे दो, वही वाले यहाँ पर इनकम में है. तो मैंने उसे आई ना लिख के ई ही रहने दिया है, जिससे आपको आप याद रख सकते हो. पुनेरी में भी जिसमें ई था, यहाँ पे ई था, यहाँ पे वैसे ही ई आ गया है जो जिससे आप याद रख सकते हो. इसके भी 4 हैं. तो इसमें जो इनकम था, जिसमें क्या था 10, 11 एंड 12 से जो इनकम हुई हमें, वो वाली हमें लेस करनी है. देन ट्रस्ट से जो हुई है वो ट्रस्ट वाली थी. आपसे जो हुई है, आप मीन्स एओपी से जो हुई है. उसके बाद 115 बी एफ से जो हुई है. उसके बाद ये वाली जो फॉरेन कंपनी से हमें इनकम हुई है ना, जो भी इनकम हुई है वो हमें ऐड कर देनी है. सो सिंपल. तो बहुत ज़्यादा सिंपल हो चुका है अब ये. पैट बर्न और उसके बाद डिल डैट पुनेरी. ऐड फॉर जो भी आप ऐड करेंगे उसके लिए डिल डैट पुनेरी. उसके बाद जो लेस करेंगे पैट बर्न. सो होप सो आपको ये अभी जितनी भी चीज़ हुई है ये बहुत अच्छे से लर्न हो चुकी है. चलो, तो इसके आगे वाले जो पॉइंट होते हैं, इसके आगे वाले जो पॉइंट है वो तीन पॉइंट ही है. उसका कोई मेमोरी टेक्निक तो नहीं है, बट वो बहुत सिंपल है. बस यहाँ पे हम कवर कर लेते हैं ताकि इफ़ समवन इज़ रेफरिंग दिस वीडियो टू कंप्लीट द मैथ प्रोसीजर, सो उसका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, तो ठीक है, हम लोग देख लेते हैं बुक प्रॉफिट. जो भी हमने अभी तक कैलकुलेट किया, उसके बाद जो भी बुक प्रॉफिट आता है, उसके बाद OCI नॉट रिक्लासीफाइड. जो भी हम लोग को रिक्लासीफाइड, जो देखो यहाँ पे ध्यान देना है कि ऐड हम क्या करेंगे, जो क्रेडिट था जो हमारे OCI रिजर्व में, OCI रिजर्व भी हमारा PNL का ही एक पार्ट होता है ना. उसका ही पार्ट नहीं कह सकते, हाँ पार्ट ही कह सकते OCI. तो जो भी हमारा क्रेडिट होगा उसमें, वही हम लोग यहाँ पे आके क्रेडिट करेंगे, मतलब ऐड करेंगे. जो हमारा क्रेडिट था वही हमें क्रेडिट करेंगे. और सेम चीज़ जो लेस में आती है डेबिट था, वहाँ पर जो डेबिट था वो हम लोग यहाँ पे डेबिट करेंगे. जो वहाँ पे डेबिट था वो यहाँ पर आकर डेबिट करेंगे. तो यही वाली बात है. तो कन्फ्यूजन यहाँ पे हो सकता है कि कभी डेबिट ले रहे हैं, कभी क्रेडिट ले रहे हैं, है ना. तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे डेबिट करेंगे और यहाँ पे भी क्रेडिट करेंगे. ये वाले पॉइंट ऐसे ही है. अभी सिर्फ ऐड वाले देखते हैं. तो इसमें 3 पॉइंट है. एक क्रेडिट, 2 क्रेडिट है, एक डेबिट है. 2 क्रेडिट है, एक डेबिट है. तो डेबिट वाला कौन सा है वो भी हम लोग देख लेते हैं. ये वाला देखो, इसमें क्या बोलना है, जो क्रेडिट वहाँ पे क्रेडिट था, OCI में जो क्रेडिट था वो यहाँ पे आगे क्रेडिट हो जाएगा. एक्सेप्शन है. और ये कौन से हैं, जो नॉन रिक्लासीफाइड होते हैं, जो कभी रिक्लासीफाई नहीं होने वाले, तो हम अभी के अभी कर देंगे. और रिवैल्यूएशन, लेकिन ये वाले रिक्लासीफाइबल नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको नहीं करते. रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑन असेट्स एज पर जो भी बोला है इन्होंने. और चेंजेस इन द फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, है ना. चेंजेस इन द फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स एज पर 109 एंड 1638. तो ये वाले दोनों हम नहीं लेते हैं. उसके बाद आ जाता है डेबिट हम किसे करते हैं, डेबिट हम किसे कर देते हैं, अमाउंट डेबिट. अब देखो, ये आपको लग सकता है कि यार हम लोग ऐड कर रहे थे तो सारे प्रॉफिट ही तो ऐड होंगे. नहीं, लेकिन ये डेबिट वाला है. अमाउंट डेबिटेड टू PNL ऑन डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ नॉन कैश असेट्स टू शेयर होल्डर इन डीमर्ज्ड. ठीक है, समझा तो नहीं रहे, अभी सिर्फ लर्न ही कर रहे हैं. और फिर आ जाता है 1/5 ऑफ द ट्रांजेक्शन अमाउंट ऑफ कन्वर्जेंस डेट पे तो 1/5 वाला. और ये वाला भी क्रेडिट बैलेंस है. जो क्रेडिट बैलेंस होगा कन्वर्जेंस डेट पे ट्रांजेक्शन अमाउंट का, उसका हम 1/5 पोर्शन ले लेंगे. लेस में भी हम सेम चीज़ कर रहे हैं. वहाँ पे डेबिट क्रेडिट डेबिट, वहाँ पे था क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, यहाँ पे था डेबिट क्रेडिट डेबिट. तो सेम चीज़ें हम उल्टी यहाँ पे भी लेस कर देंगे. जैसे कि आइटम्स डेबिटेड टू द OCI जो भी नॉन रिक्लासीफाइड है, उसके बाद क्रेडिट वाला कर देंगे हम PNL डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉन कैश
assets amount credited to P&L on distribution of non-cash assets to shareholder or 1/5 of the transition amount on convergence date. ठीक है, बहुत ही शॉर्ट रेफरेंस पर्पस के लिए मैं ये भी बता देती हूँ कि कन्वर्जेंस डेट में हम क्या क्या ऐड नहीं करते, मतलब जो भी रहेगा, कन्वर्जेंस डेट बोल रही हूँ मैं, क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन अमाउंट में हम लोग क्या क्या नहीं कंसिडर करते। कैपिटल रिजर्व्स और सिक्योरिटी पेमेंट बहुत बार आ जाता है ये। अमाउंट एडजस्टेड इन द OCI बट सब्सिक्वेंटली रीक्लासिफाइड टू द P&L। अमाउंट्स जो एडजस्ट करते हैं हम OCI में बट सब्सिक्वेंटली जो रीक्लासीफाई हो जाते हैं P&L में, उनको हम कंसिडर नहीं करते। रिवैल्यूएशन सरप्लस फ्रॉम द असेट्स वो भी नहीं करते, जो हमने ऊपर देखा था ना, जिसे हम कंसिडर नहीं कर रहे थे, वही वाली यहाँ पे भी कंसिडर नहीं करते। चेंज इन द फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, उसे भी कंसिडर नहीं करते। तो ये तीनों चीज़ तो आपको बहुत अच्छे से समझ गई। जो हम रिक्लासीफाई होता है उसे नहीं करते, और जो ये दोनों रिक्लासीफाई नहीं होते लेकिन फिर भी इसे नहीं करते, हमने ऊपर भी देख लिया। और ये वाला हमें ध्यान ही रहेगा, कैपिटल रिजर्व्स एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स, ये हम कंसिडर नहीं करते। मतलब जो भी अमाउंट दिया रहेगा ना आपको, किसका, ट्रांजिशन अमाउंट का, उसमें से इसको लेस करना है। और एडजस्टमेंट किसके रिगार्डिंग करनी है, PPE इंटेंजिबल एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स इन द सब्सिडरी एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर, और ट्रांसलेशन डिफरेंस ऑफ फॉरेन ऑपरेशंस, है ना, इसे भी लेस कर देना। ओके, सो वी आर डन विद दिस टॉपिक। अगर आपको सच में अच्छा लग रहा है और आपको याद हुआ है, सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऐसे ही वीडियोज़ छोटे छोटे जो लर्न करने वाले टॉपिक्स होते हैं, आई विल पुट ऑन दिस। ओके, बाय बाय।